So good morning class. Today we are going to start unit 3, and that basically deals with the technical aspects of how to give an effective presentation. What are the strategies, what are the techniques, and you might have also experienced that when we go to give a presentation, some of us might feel the fear of stage, they are not feeling confidence, and that is why all their presentation is not that much effective. So all these issues are going to be discussed and analyzed in unit 3. So here we are going to start with the lecture 1, and it deals with the presentation. Presentation is an opportunity to address an important issue with an individual or a group of persons. Suppose I want to discuss about the topic of the applications of the Python programming language, or I want to discuss the 3ds Max, or I want to address or give information on a particular topic, on a particular problem to a group of people, to an individual. So what will I do? I'll prepare my lecture, I'll prepare my content, and I'll be using certain platform to give that presentation to my audience. Fine. So that is the basic presentation that we encounter in our day-to-day life. The classroom lecture is also a kind of presentation. The motivational lecture that we see on the websites or on the YouTube and all that, that is also an example of presentation. So a technical or business presentation is a forum to influence people towards a desired action or thought. Whenever we give business presentation, whenever we give technical presentation on a particular topic, what is the purpose, what is the objective? The objective is that after the discussion, after the presentation, the audience is now capable of taking certain action. For example, if I am giving a technical presentation, now the audience will be able to solve his or her problem based on the information that I shared. If it was a business presentation, now the audience will be ready to get ready with the business proposal, get ready with the usage of my product and all that. So after the end of the presentation, the audience is now capable of taking some desired action, either acceptance or rejection, if that does not suit their business needs and all that. Technical or business presentations are persuasive in nature. Very well done. What is the meaning of persuasion? Means convince करना. तो जो भी हम अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, जो भी हम बिजनेस प्रपोजल को शेयर कर रहे हैं, माई पर्पज़ इज़ टू कन्विंस द ऑडियंस सो दैट ही इज़ नाउ कन्विंस्ड अबाउट द फीचर्स एंड द बेनिफिट्स ऑफ माई प्रोडक्ट और बिजनेस प्रपोजल. तो हमारा जो पर्पज़ है वो परसुएट करने का है. आई एम ट्राइंग टू कन्विंस द ऑडियंस विथ माई ऑब्जेक्टिव, with my benefits, with my business proposal and all that. So on the basis of the purpose, why this presentation is being made, what is the objective of the presentation, and what can be the audience structure of the presentation, तो इन सारे कैटेगरी के आधार पे, इन सारे पैरामीटर्स के आधार पे हम प्रेजेंटेशंस को डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. तो पहला जो क्लासिफिकेशन है कि उद्देश्य के आधार पे प्रेजेंटेशन. सो ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस, information and the nature of the presentation, it can be number one, informative presentation. So informative presentation is a presentation where the speaker, where the orator is sharing his or her data, information as per the requirement of the audience. जैसा ऑडियंस की रिक्वायरमेंट है, जैसा ऑब्जेक्टिव हमारा है, उसको जैसा बेनिफिट हम पहुंचाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने प्रेजेंटेशन में आई इंक्लूड मोर ऑफ द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ठीक है. जैसे अगर बिज़नेस से रिलेटेड है तो हम उस प्रोडक्ट्स से जितने भी फीचर्स होंगे उस फीचर्स के बारे में बात करेंगे, उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे. कोई टेक्निकल एस्पेक्ट है तो उसके टेक्निकल डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है. पॉलिसीज़ एंड रूल्स के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पे हम जो स्पीकर है, जो ओरेटर है, वो अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है, वो लोगों को सूचित कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है. And that is why the informative presentations are also called tell presentation, यानी बता रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, inform कर रहे हैं, instruct कर रहे हैं. And these kind of presentations are basically loaded with relevant facts and data and information. Second
टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज परसुएसिव प्रेजेंटेशन, यानी मनाने वाला प्रेजेंटेशन, कन्विंस करने वाला प्रेजेंटेशन. सो परसुएसिव प्रेजेंटेशंस आर डिजाइंड टू इंड्यूस एन ऑडियंस टू एक्सेप्ट ए बिलीफ और एक्शन. हम अपने आइडिया से, हम अपने प्रोडक्ट के फीचर से हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑडियंस को, जिनके सामने हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाई माई प्रोडक्ट इज़ बेनिफिशियल टू यू, वाई माई एनालिसिस इज़ बेनिफिशियल टू यू, वाई माई सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ गोइंग टू बेनिफिट टू यू. तो वो हमारी बातों से प्रभावित होकर के हो सकता है कन्विंस हो जाए. तो ये जो परसुएसिव प्रेजेंटेशन है, जिसके बेसिस पे हम उनको कन्विंस कर रहे हैं, ताकि कन्विंस हो करके वो आगे चल के कुछ उसका एक्शन ले पाएँ, उस पर बिलीव कर पाएँ. तो इस तरह के प्रेजेंटेशन को वी कैन ऑल्सो टर्म एज सेल प्रेजेंटेशन. In the informative, we were telling about the sharing the information. In the persuasive presentation, we are convincing the audience so that they can take a desired action. So we are selling our ideas. So this is also known as sell presentation. And the third presentation that is based on the purpose of the presentation is also called motivational presentation. We are trying to generate awareness. We are trying to generate awareness about their inner strength, what they can do in their life, what they can achieve in their life, what such problem, if rectified, what such problem is, if the problem is analyzed and the solution is obtained, what is going to do in their effectiveness of the work process and all that. So these motivational presentations are designed to reassure the audience. Reassure the audience means that they are capable of solving the problem, they are capable of achieving certain things in their life. And to do certain things in their life and to realize that they are capable, so they have to believe in my ideas. They have to follow the instructions that I am going to offer to them. And that is why these motivational presentations are also called join presentation. Come, join my this campaign, come and join my this forum, come and join this my institute, this society and all that. And by joining and by associating with us, you are going to reap certain benefits. So motivational presentations are also called join presentation, where the audience, if convinced, they are now going to join your organization, join your society for their own benefits. On the basis of the audience profile, कैसा audience है, उस ऑडियंस का क्या स्ट्रक्चर है, क्या डेमोग्राफिक कैरेक्टर है, कहाँ को बिलोंग करते हैं, इंटरनल है या एक्सटर्नल है. सो प्रेजेंटेशंस कैन बी नाउ categorized as number 4, internal presentation. Internal presentation is the presentation that is given by an expert to the internal employees, to the students of the institute, to the employees of an organization. यानी जो प्रेजेंटेशन हम अपने संस्था के अंदर एक एक्सपर्ट के द्वारा दूसरे को, अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, सो दैट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड इंटरनल प्रेजेंटेशन. द ऑडियंस कैन बी एम्प्लॉयज़, द ऑडियंस कैन बी स्टूडेंट्स. और ये ऑडियंस और ये एम्प्लॉयज़ हो सकता है एक्सपर्ट जो प्रेजेंटेशन ले रहा है उसको जानते हो या ना जानते हो सकता है मान लीजिए कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कोई एक्सपर्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को किसी एस्पेक्ट पे अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऑडियंस उस एक्सपर्ट जो प्रेजेंटर है उसके बारे में जाने. सो द बेसिक थिंग इज़ कि इंटरनल प्रेजेंटेशन इज़ प्रेजेंटेशन मेड टू द इंटरनल ऑडियंस. और ये इंटरनल ऑडियंस उस संस्था के अपने स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उस संस्था के अपने एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं. अनदर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ external presentation. Suppose I am going to take presentation in ITM, Institute of Technology and Management. So the expert is moving out of his or her own organization to give presentation to the employees or students of another organization. Then that kind of presentation is external presentation. In external presentation, the audience is not belonging to the same organization where the expert belongs to. It consists of the prospective clients, the vendors, the partners, and generally unknown to the presentation. तो एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन में जो ऑडियंस है वो प्रेजेंटर को जानता भी होगा और नहीं भी जानता होगा. इंटरनल में तो जान सकता है क्योंकि वो उसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग कर रहा है. लेकिन यदि हम बाहर के किसी क्लाइंट के पास जा रहे हैं, बाहर के किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने जा रहे हैं, हम अपना बिजनेस प्रपोजल का प्रेजेंटेशन लेके जा रहे हैं कहीं पे, सो दैट कैन बी एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन.
ठीक है। हम जो बिजनेस प्रपोजल लेके आते हैं उसका भी हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट के सामने उसको प्रेजेंट करते हैं आइडियाज़ को। सो दैट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। सो बिजनेस प्रपोजल को भी हम प्रेजेंटेशन के कैटेगरी में ले सकते हैं, बिकॉज हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को कि हमारे आइडियाज़ को, हमारे प्रोडक्ट को वो एक्सेप्ट करें। सो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोफाइल ऑफ द ऑडियंस इट कैन बी इंटरनल प्रेजेंटेशन एंड एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन. So this was the category of the presentation. On the basis of the time available to prepare the presentation, कि हमको कितना समय मिला वो presentation बनाने के लिए, तो on the basis of the time also we can classify the presentation. Impromptu presentation. Impromptu मतलब तत्काल प्रभाव से हमने कोई चीज़ on the spur of the moment, on the spur of the time हमने अपना presentation दे दिया. तो इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशंस आर मेड विदाउट एनी प्लानिंग और प्रिपरेशन. अचानक से कोई परिस्थिति ऐसी आई, अचानक से ऐसा सिचुएशन अराइज हुआ कि मुझे अपनी बात को कहना है, तो नाउ आई कैन स्टैंड अप एंड स्टार्ट गिविंग माय प्रेजेंटेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. सो इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशंस की खासियत ये होती है कि इट कैन बी फ्री फ्लोइंग. I can be easily connected with my audience because I am speaking by heart. I can be very lively in my presentation. I can easily connect with my audience. I will be able to answer their queries based on my experience. But impromptu presentations are not everybody's cup of tea. The person who is capable, who is well learned, who has enough data, who is experienced, only can he give the impromptu presentation. क्योंकि आपके पास प्रेजेंटेशन में आइडियाज़ शेयर करने के लिए इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए. विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट एक्सपीरियंस अगर आप इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन की कोशिश करेंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि विदाउट प्रिपरेशन हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं, ब्लैकआउट हो जाता है. ठीक है. सो इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन का जो निगेटिव ड्रॉबैक है, जो बड़ा ड्रॉबैक है, कि everybody is not capable of giving impromptu presentation because they might lack confidence, they might lack content, they might lack spontaneity. So it is good only for the persons who are experienced enough, who are learned enough, and who have enough data to share with the audience. And it is one of the presentation that has the everlasting impact. अच्छे से कर दिया तो बहुत everlasting impact भी पड़ेगा, otherwise it can have a serious drawback. And then there can be the presentation for which I have ample time to prepare. पहले से मैंने प्लानिंग कर ली है कि नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू गिव माई प्रेजेंटेशन ऑन सच एंड सच टॉपिक टू सच एंड सच ऑडियंस. तो हमारे पास अब डेटा है, हमारे पास समय है कि हम इस तरह के ऑडियंस के लिए अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं. तो आई कैन कलेक्ट माई डेटा, आई कैन कलेक्ट माई मटेरियल, आई कैन राइट इट डाउन, आई कैन मेक पावर पॉइंट स्लाइड्स, एंड आई कैन हैव टाइम टू रिहर्स, and I have time to make necessary changes. यदि प्रेजेंटेशन या रिहर्सल के दौरान हमको लगता है कि समय ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, ये डायग्राम में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो हम उसमें नेसेसरी एडिटिंग कर सकते हैं. ठीक है. सो प्लान प्रेजेंटेशंस आर द प्रेजेंटेशन दैट आर मेड विथ केयरफुल प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, एंड फॉर दैट वी हैव एम्पल टाइम. सो वी सॉ दैट प्रेजेंटेशन कैन बी categorized on the basis of the purpose. It can be informative, also known as tell presentation. It can be motivational, that is called joint presentation. It can also be a sell presentation. On the basis of the kind of the audience that we are having, it can be internal presentation and external presentation. And on the basis of the time available to get the preparation or not time available, it can be impromptu and planned presentation. Now, we are talking about presentation, and all of you might be going through this presentation in front of the class for your research paper and all that. तो उस पर आपको मार्किंग वगैरह भी मिलती है. तो what are the strategies for good presentation? So a good presentation has the following building blocks. उसमें ये सारी चीज़ों का हमको ध्यान देना पड़ेगा. Number one is purpose. I should be very much clear what topic am I going to discuss. Why am I going to give presentation? What benefit does it has to be offered to the audience? So it is extremely important to decide the purpose or the objective of the audience of the presentation.
So the purpose should be very much clear, because if I am not clear about my objective, why I am going to give the presentation, तो हमारा presentation derail हो सकता है. I can go off track. So a well-defined purpose presents a direction or a guideline not only to the speaker but also to the audience. It is action oriented and focused on achieving goal or aim. तो audience को भी लग जाएगा कि हम आज के presentation से मेरा क्या take away है, what I am going to get. Second thing that is important to consider while giving a presentation is audience analysis. Who are my prospective audience? किनके सामने हम ये presentation देने जा रहे हैं, उनका क्या need हो सकता है, उनकी क्या requirement हो सकता है, why they will listen to me, what they will get by the end of my presentation, what are their educational background. उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड को भी ध्यान में रखना पड़ेगा. उसके अकॉर्डिंगली हम अपने इन्फॉर्मेशन जो शेयर कर रहे हैं, बातें जो शेयर कर रहे हैं, कंटेंट जो शेयर कर रहे हैं, उसको कॉम्प्लेक्स या सिंपल कर सकते हैं. ठीक है, ताकि उनका उसमें इंटरेस्ट जगे. इन प्रेजेंटेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द डिज़ायर्ड अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, अदरवाइज द पर्पज ऑफ माई प्रेजेंटेशन विल बी फेल्ड. So before giving presentation, it is important to know the audience for whom the presentation is intended. And what information do I need, what is the educational background, what are the requirements that they want to know, why they are interested in my presentation, what benefit will they be getting after the end of the presentation. Okay? So all these things need to be carefully analyzed before giving the presentation. Now the third thing that needs to be taken care of is set the context. जब हम प्रेजेंटेशन देने के लिए स्टेज पे आ गए तो हमको अपने प्रेजेंटेशन का एक माहौल बनाना पड़ेगा, एक संदर्भ देना पड़ेगा. एंड द कंटेक्स्ट इज सेट. जो ओपनिंग लाइन हम देंगे प्रेजेंटेशन से पहले, दैट इज गोइंग टू सेट द कंटेक्स्ट. सो द ओपनिंग लाइन वी कैन स्टार्ट बाय गिविंग एन एग्जाम्पल, वी कैन स्टार्ट बाय गिविंग ए कोटेशन, वी कैन स्टार्ट बाय गिविंग शेयरिंग ए स्टोरी. और इस स्टोरी के माध्यम से, उस कोटेशन के माध्यम से हम ऑडियंस को अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज का प्रेजेंटेशन में क्या चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं और इससे आपको क्या लाभ मिलने वाला है. तो एक माहौल बना दिया टू गेट द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस. इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, किस परिस्थिति में, किस माहौल में हम ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और द कॉन्टेक्स्ट इन विच द प्रेजेंटेशन हैज़ टू बी डिलीवर्ड. So after deciding the purpose, after deciding the audience analysis and setting the context, next thing that is important is हमारा जो presentation है उसका जो content है वो logically structured हो, वो logically arranged हो. हर presentation का एक objective होता है, तो हमारे objective के अनुसार उसमें relevant facts, information हो, और वो slides ऐसे बने हों कि हर एक स्लाइड दूसरे स्लाइड पे जाने से पहले रिलेवेंटली कनेक्ट हो, लॉजिकली कनेक्टेड हो एक दूसरे से. सो द स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट को डिसाइड करने के लिए किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा. द टॉपिक शुड बी रिलेवेंट एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडियंस. द कंटेंट शुड बी अरेंज्ड इन द लॉजिकल सीक्वेंस, हैफर्ड वे में ना हो. ठीक है, वन आइडिया विल लीड टू द अनदर आइडिया एंड दैट आइडिया विल लीड टू नेक्स्ट आइडिया. तो वो लॉजिकली कनेक्टेड होने चाहिए, कोहरेंस होना चाहिए, जिसको मैंने बोला था. आपने पढ़ा होगा पैराग्राफ राइटिंग, तो उसमें एक टॉपिक सेंटेंस होता है और उस टॉपिक सेंटेंस के अनुसार ही हम अपने स्ट्रक्चर को रीअरेंज करते हैं. तो कंटेंट को रीस्ट्रक्चर करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है. वी कैन मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल और द जनरल टू स्पेसिफिक, या हम कंटेंट को अरेंज कर सकते हैं पिरामिड के फॉर्म में. जो मेन टॉपिक है, जो मेन आइडिया, उसको ऊपर रखे और उसके सपोर्टिव आइडियाज़ को, उससे रिलेटेड एनालॉजीज़ को, एग्जाम्पल्स को, डेटा को उसके नीचे अरेंज करते जा सकते हैं. ठीक है. एंड एम्फेसिस शुड बी मेड ऑन द एसेंशियल इशूज़. हम अपने प्रेजेंटेशन के दौरान जो हमारा मुख्य चीज़ है, जो हमारे मेन आइडियाज़ हैं, उस पर हम प्रॉपर जोर दें, उसको बार बार उसको रिपीट कर सकते हैं, उसको हम हैमर कर सकते हैं, ताकि ऑडियंस उस मेन इशूज़ से भटके ना. द कंटेंट शुड नॉट बी एम्बिगुअस. भाषा ऐसी हो, टर्मिनोलॉजी ऐसी हो, स्ट्रक्चर ऐसा हो जो ऑडियंस जिसको समझने में उसको कोई कठिनाई ना हो. ठीक है. एंड द कंटेंट शुड रेजोनेट विद द ऑडियंस. रेजोनेट विद द ऑडियंस मीन्स उसके, यानी उसको पढ़ करके, उसको सुन करके ऑडियंस अपने आप को उससे कनेक्टेड महसूस करे कि हाँ, ये मेरे से रिलेटेड है, मेरी ज़रूरतों, मेरी नीड के अकॉर्डिंगली ये प्रेजेंटेशन जा रहा है, तो वो कनेक्ट फील करेगा. ठीक है. एंड द लास्ट थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गिविंग प्रेजेंटेशन एंड द स्ट्रैटेजी शुड बी कि डिज़ाइन कंटेंट. तो
प्रेजेंटेशन का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, उसमें फ़ॉन्ट साइज़ ऐसा हो, स्लाइड का कलर ऐसा हो, उसके डायग्राम्स वगैरह ऐसे हों जो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो और इंटरेस्ट जनरेट करने वाला हो। जो फ़ॉन्ट का साइज़ जो नॉर्मली 30 पॉइंट्स हो, बहुत ज़्यादा स्लाइड्स अपने प्रेजेंटेशन में डाल देंगे तो टू मच इन्फॉर्मेशन विल कंफ्यूज द ऑडियंस। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो, कंसाइज हो, स्लाइड्स लॉजिकली कनेक्टेड हों, उसमें जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे ग्राफ्स वगैरह का इस्तेमाल करें, जहाँ पे ज़रूरत हो डायग्राम का इस्तेमाल करें, ऑडियो विजुअल्स का इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा बहुत सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में हम वीडियो क्लिपिंग्स वगैरह भी डाल देते हैं, तो उसको डालने से ये फ़ायदा होता है कि जो हमने कंसेप्ट ऑडियंस के साथ शेयर किया उसका लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वो एक छोटे से वीडियो के माध्यम से देख भी सकते हैं। So all these things can be included while designing my presentation. So in the strategy, we have to consider the purpose, the audience analysis, we have to set the context, we have to structure the content in the very logical manner, and the design should be of interesting. Now, suppose I have to give a presentation, तो presentation के लिए क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए। तो वंस आई हैव डिसाइडेड अबाउट द ऑब्जेक्टिव की प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और ऑडियंस एनालिसिस अगर हमने कर रखा है तो हम उससे संबंधित अब क्या करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज़ आई हैव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। जो कंटेंट हम बनाने जा रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, उस कंटेंट के लिए मेरे पास मटेरियल होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। तो वो डेटा कहाँ से मिलेगा, ठीक है। वो डेटा हमको मिल सकता है फ्रॉम न्यूज़पेपर, फ्रॉम लाइब्रेरी, फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम पास्ट रिकॉर्ड, फ्रॉम एम्प्लॉयज़, फ्रॉम क्लाइंट सर्वे एंड ऑल दैट। मैंने आपको बोला था इन्फॉर्मेशन दो तरह का हो सकता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी मीन्स ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, बुक से, मैगजीन से, इंटरनेट से, गूगल से, हमने अपना रिलेवेंट मैटर कलेक्ट किया, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो पहले से अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए हमने सर्वे करा लिया, फीडबैक करा लिया, और वो मैटर हमने कलेक्ट कर लिया कि हमारे प्रेजेंटेशन के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़, अब इस इन्फॉर्मेशन को हमको क्या करना है, क्रम से लगाना है, लॉजिकल तरीके से व्यवस्थित करना है। सो वंस द इन्फॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड, इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग फ्रेमिंग एंड माइंड मैपिंग अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल थीम ऑफ द टॉपिक। जो हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है उसमें ये इन्फॉर्मेशन कैसे फिट होगा, पहले किस बात को शेयर किया जाए, उसके बाद किन बातों को रखा जाए, तो लॉजिकल कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि पैराग्राफ राइटिंग में भी हमने बताया था कि टॉपिक सेंटेंस के अनुसार ही बाकी के सेंटेंस उससे रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑर्गेनाइज यूजिंग पिरामिड प्रिंसिपल। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको पहले रख दिया, ऑडियंस का अटेंशन मिल गया आपको, उसको लगेगा हाँ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू लर्न आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन। और उसके बाद उस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सपोर्ट करने वाले जितने भी आइडियाज़ हैं, जितने भी आर्गूमेंट हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, उसको एक्सपैंड और एक्सप्लेन करते जाएंगे, तो वो एक पिरामिड के स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन। सेकंड थिंग, हम अपने प्रेजेंटेशन को अब स्ट्रक्चर करेंगे, जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है। सो ए वेल क्राफ्टेड प्रेजेंटेशन इज अरेंज्ड इन लॉजिकल एंड सीक्वेंशियल मैनर। और ये जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंटेशन का, मेनली इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, द बिगनिंग, द मिडिल एंड द एंड सेक्शन। किसी भी प्रेजेंटेशन के ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं। इन द बिगनिंग सेक्शन हम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, अपने टॉपिक को, अपने प्रेजेंटेशन के थीम को इंट्रोड्यूस करते हैं ऑडियंस के सामने। सो द स्पीकर प्रेजेंट्स द मटेरियल टू बी कवर्ड इन द प्रेजेंटेशन। इट गिव्स द ऑडियंस एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट। इससे ऑडियंस को लग जाएगा कि इस प्रेजेंटेशन से मुझे क्या मिलने वाला है। इट प्रिपेयर्स द ऑडियंस फॉर द प्रेजेंटेशन। तो जो पहला सेक्शन है, जो इंट्रोडक्टरी लाइन है, उससे ऑडियंस को हमने सेट कर दिया कि वो अब हमारे प्रेजेंटेशन के बाद क्या चीज़ सीख के या क्या चीज़ गेन करके जाने वाला है। इन द मिडिल सेक्शन अब हम उस टॉपिक को क्या करेंगे, डिटेल में एनालाइज करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, कंसेप्चुलाइज करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड, एग्जाम्पल, स्टोरीज, एनालॉजीज। सो इन द मिडिल सेक्शन includes the explanation section, and it can include examples, illustrations, visual aids that support and enhance the key points of the presentation. और प्रेजेंटेशन के एंड के सेक्शन में हम पहले जितनी भी बातें कर चुके हैं, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन आई हैव शेयर्ड विथ माई ऑडियंस, वॉट एवर एग्जाम्पल, वॉट एवर टॉपिक आई हैव शेयर्ड विथ माई ऑडियंस, उसको हम क्या करेंगे, अब समराइज़ करेंगे। एंड करने से पहले उसको रिवाइज करा देना है, उसको समराइज़ करा देना है
ऑडियंस को, ताकि वो जो प्लेस है प्रेजेंटेशन का, वो जो हॉल है, वो जो ऑडिटोरियम है, वहाँ से जाने के बाद उसको टेक अवे मिले कि आज के प्रेजेंटेशन का क्या सारांश रहा, क्या लबोलुआब रहा. सो इट इंक्लूड्स द कंक्लूजन बाय द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन. व्हाट इज द कंक्लूजन दैट वी हैव ड्रॉन, व्हाट इज द बेनिफिट दैट आई एम गोइंग टू रीड. सो दिस सेक्शन इज द समरी ऑफ द पॉइंट्स डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शंस. और इसके बाद ऑडियंस ये डिसाइड कर सकता है कि अब उसको करना क्या है. इट कॉल्स फॉर द एक्शन. प्रपोजल के हिसाब से, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के हिसाब से अब उसको क्या करना है, ये उसके पास अब क्लियर आइडिया हो गया. तो द एंड ऑफ द सेक्शन, द कंक्लूजन, द समरी प्रिपेयर्स द ऑडियंस टू टेक सर्टन एक्शन. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एनी नॉर्मल प्रेजेंटेशन दैट वी कैन हैव. स्ट्रक्चर करने का एक बड़ा पॉपुलर तरीका है कि अपने प्रेजेंटेशन को स्ट्रक्चर करने में आइडा प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना चाहिए. इट इज़ वेरी पॉपुलर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. So what is the AIDA principle? AIDA. And according to this AIDA, I can structure the content of my presentation. So A stands for attention, I stands for interest, D stands for desire, and A stands for action. तो इन चार प्रिंसिपल के आधार पे हम अपने प्रेजेंटेशन को स्ट्रक्चर कर सकते हैं. A means attention. This involves making an attention-getting statement, including the introduction in a group presentation and agenda, setting the agenda. तो कंटेंट हमारा ऐसा हो कि जिसको यदि हम बताएं ऑडियंस को तो वो उस ऑडियंस का उस प्रेजेंटेशन के प्रति इंटरेस्ट जगे. ओपनिंग स्टेटमेंट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू know about the Python and its implication in the modern scenario, what benefit it is going to give you in your career advancement and all that. आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी के कॉमर्शियल्स वगैरह में भी, तो जो ओपनिंग लाइन होता है वो ऐसा होता है कि आपका ध्यान उस तरफ जाता है. सो दैट इज़ द थिंग. तो पहला जो कंटेंट ऐसा होना चाहिए, पहली लाइन, ओपनिंग लाइन ऐसी हो जिससे ऑडियंस का ध्यान उस प्रेजेंटेशन के पास जाए. सेकेंड थिंग इज़ इंटरेस्ट. हम अपने प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसे फैक्ट्स रखें, कुछ ऐसे एग्जाम्पल रखें, कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएं कि हमारे प्रेजेंटेशन का जो उद्देश्य है उसके प्रति लोगों में जागरूकता आए, उसको रुचि आए. आपने अगेन कॉमर्शियल में देखा होगा कि जैसे किसी प्रोडक्ट का पैर में दर्द हो रहा है तो कोई ऑइंटमेंट है, तो बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस को उसमें बताते हैं. पहले ऐसा दर्द होता था, फिर मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया था, नाउ आई कैन वॉक फ्रीली एंड समथिंग लाइक दैट. So I have to present certain evidence, I have to present certain experience, certain example in my presentation so that the audience is now interested to listen it carefully. The third thing in my content should be कि जो presentation हो उसको सुनने के बाद उनमें वो उत्सुकता आए, desire आए. In this step the benefit of the product or the service of an idea is elaborated. इस section में हम अपने बिजनेस प्रपोजल को, हम अपने जो थीम ऑफ द प्रेजेंटेशन है उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे. कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, उस सर्विस के एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे. तो जब हम उसके एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे कि इसको इस्तेमाल करने से, इसको फॉलो करने से आपको ये बेनिफिट्स होगा, तो उनके अंदर उस प्रोडक्ट, उस आइडिया के प्रति क्या होगा, चाह उत्पन्न होगा, डिज़ायर उत्पन्न होगा. उनके नीड और एक्सपेक्टेशन के अनुसार यदि वो बेनिफिट हम बता पा रहे हैं तो उनके अंदर वो डिज़ायर आएगा कि यस नाउ आई कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट. एंड वंस दैट डिज़ायर इज़ देयर, तो अब हमको कुछ ऐसा स्टेप बताना है अपने प्रेजेंटेशन में, ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करना है कि वो उसको फॉलो करने के लिए तत्पर हो जाए. आपने देखा होगा बहुत सारे कमर्शियल्स में कि नाउ यू कैन पिक अप योर फोन एंड बुक योर ऑर्डर, ऑफर लिमिटेड, समथिंग लाइक दैट. तो वो अर्जेंसी हम उसमें डाल सकते हैं. सो द लास्ट स्टेप कॉल्स ऑन द ऑडियंस टू एक्ट एंड मेक इट ईजी फॉर देम टू कम्युनिकेट. और यदि उनके मन में हमारे प्रोडक्ट, हमारे आइडियाज़ को लेकर के यदि कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो दे कैन गो फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन. They can raise the question and I will be able to answer their queries to give them the satisfaction, or I can convince them about my ideas and all that. So by following this AIDA, I can structure the content of my presentation. So in today's lecture we mostly saw about what is presentation, the categories of presentation, and what are the strategies for making the presentation, what are the steps involved in making a presentation, and how to structure the presentation. So thank you and have a nice day.